أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسک عربک گرامر کورس کے اندر آج کل ہمارا ٹاپک چل رہا ہے مرکب ناقص، اور مرکب ناقص کے اندر ہم دو طرح کے مرکبات پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسرا مرکب سٹارٹ کرنا ہے جس کا نام ہے مرکب اضافی۔ ابھی جو ہم اس سے پہلے کے مرکبات پڑھ چکے ہیں اس کے لیے ایک ایک لیکچر ہی کافی تھا۔ اس میں ہم کرتے کیا تھے کہ ہم اس مرکب کی تفصیل پڑھتے تھے، اس کے اصول پڑھتے تھے، اس کی اگزامپلس دیکھتے تھے، اور پھر ان کو جملے میں استعمال بھی کر کے دیکھتے تھے۔ لیکن اب مرکب اضافی تھوڑا سا کمپلیکس ہے سمجھنے کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے، مطلب اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ذرا ہٹ کے ہے، اور اس کے اصول تھوڑے سمجھنے والے ہیں۔ تو اس لیے آج ہم اس کو جملے میں استعمال کر کے نہیں دیکھیں گے، ابھی ہم اس کا صرف ایک پہلو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مرکب اضافی عربی میں بنتا ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی مرکب ناقص کے حوالے سے، یعنی دو طرح کے مرکبات ہوتے ہیں، ہم شروع سے بات کر رہے ہیں۔ ایک ہے مرکب ناقص، یعنی ایسا مرکب جس سے بات پوری نہ ہو، اور دوسرا مرکب تام، یعنی ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے، اسے عرف عام میں جملہ کہتے ہیں۔ تو ہم مرکب ناقص کی جب بات کرتے ہیں تو ہم نے ابھی تک جو دیکھا، مرکب اشاری ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں پہلا جو لفظ ہوتا ہے وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہ اگزامپل ہے یہ کتاب۔ پھر ہم نے دیکھا پچھلے لیکچر میں مرکب توصیفی، یعنی ایسا مرکب جس کے اندر کسی چیز کی صفت بیان کی جا رہی ہو، اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہو، اس جیسے کہ اگزامپل ہے اچھا لڑکا۔ اب مرکب اضافی کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اضافے سے آپ کو بات سمجھنی چاہیے۔ اضافہ یعنی کہ کسی چیز کے حوالے سے کوئی مزید چیز ڈیفائن کی جائے، ٹھیک ہے؟ اگزامپل لڑکے کی کتاب، اب لڑکا بھی اس میں پورا ایک اسم ہے، اور کتاب بھی انڈیویجول ایک اسم ہے، الگ الگ دونوں اپنی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے کتاب کو لڑکے کے ساتھ ایک نسبت دے دی ہے، ہم نے اس کی کہہ دیا کہ یہ اس کی کتاب ہے، تو اب ہم نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اب ہم نسبت دے رہے ہیں، اور اب ہم اضافہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کسی چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو مرکب اضافی اس طرح کے مرکبات ہیں جو ہماری عام زبان میں، عام زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں بے تحاشا ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرا نام، اس لڑکی کا نام، میرے گھر کا نام، میرے ملک کا نام، کتنی دفعہ ہم کا کی کر کے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کی مسجد، محلے کی مسجد، ٹھیک ہے؟ ہم بہت ساری فلاں کا بیٹا، کسی کا بھی ہم کہہ دیتے ہیں فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی۔ تو ہماری گفتگو کا بڑا مرکزی حصہ ہوتا ہے مرکب اضافی، اور اسی طرح قرآن میں بھی بہت دفعہ یہ آتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اکثر اوقات نسبت دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور جب ہم آج اس کو پڑھ کے ہٹیں گے تو ہمیں بہت سی اگزامپلس ان ان صورتوں میں سے بھی نظر آنے لگ جائیں گی جو ہماری روزمرہ پڑھنے والی صورتیں ہیں۔ ہم بڑے آرام سے پھر پک کریں گے، اچھا یہ بھی مرکب اضافی، اچھا یہ بھی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہم یہ دیکھتے تھے پچھلے دو لیکچرز میں بھی کہ ہم پہلے اصول بنا لیتے تھے کہ اردو کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے ہم عربی میں اس کو کیسے لکھیں گے، اسی طرح آج ہم نے اس کا بھی اصول بنانا ہے۔ فار ایگزامپل زید کی کتاب، ادھر سے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اب اس کے دو حصے ہیں، ہمیشہ کی طرح مرکبات کے فی الحال جو ہم نے پڑھے ہیں کہ دو حصے ہوتے ہیں۔ اس مرکب کا بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ ہوتا ہے مضاف الیہ، جس اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہو، میں ذرا ایکسپلین کروں گی تو آپ کو یہ ورڈ سمجھ آ جائے گا۔ دوسرا ہے مضاف، وہ اسم جو نسبت کے طور پر استعمال ہو۔ مضاف کو کیسے یاد رکھیں؟ اضافے سے۔ اردو والے زواد کو زواد پڑھتے ہیں نا ہم، اسی لیے آپ اسے مضاف پڑھ رہے ہوں گے اور مضاف الیہ پڑھ رہے ہوں گے، تو ٹھیک ہے، آپ جس طرح کمفرٹیبل ہیں وہ پڑھ لیں۔ بٹ ہم کیونکہ عربی کا لیسن پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میرے منہ سے مضاف ہی نکل رہا ہے، کیونکہ ایکچولی عربی کے اندر زواد کا ساؤنڈ دواد کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مضاف الیہ اور مضاف، اضافے سے مضاف، ٹھیک ہے؟ آپ کو اگر یاد ہو تو جب ہم نے مرکب اشاری پڑھا تھا تو وہاں بھی اس طرح کے لفظ موجود تھے، ایک تھا اشارہ اور دوسرا تھا مشارن الیہ۔ بالکل اسی طرح
मुदाफ इले, मुशारुन इले क्या था? मैंने कहा था जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो, जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा हो। यहाँ पे मुदाफ इले क्या है? जिसकी तरफ निस्बत दी जा रही हो। जैसे इस मिसाल में जैद की किताब में जैद मुदाफ इले है, क्योंकि किताब को निस्बत दी जा रही है किसकी तरफ? जैद की तरफ। किताब को, किताब का हवाला जोड़ा जा रहा है जैद से, तो जिससे हवाला जोड़ा जा रहा है वो है मुदाफ इले, और जो चीज हवाला बन रही है वो मुदाफ है, यानी किताब। तो दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा हो गया मुदाफ इले और दूसरा हो गया मुदाफ। और जिस तरह मुरक्कब तौसीफी में हम ऑपोजिट कर देते थे, डायरेक्शन करते थे ना, उर्दू में हम अगर लिखते हैं अच्छा लड़का, तो अरबी में लिखते हुए हम लड़के को पहले ले आते हैं और उसकी अच्छाई को बाद में ले आते हैं, उसकी सिफत को बाद में ले आते हैं। इसी तरह मुदाफ और मुदाफ इले में भी हम क्या करेंगे, मुरक्कब इजाफी में भी हम उर्दू में लिखते हैं जैद की किताब, लेकिन अरबी में कन्वर्ट करते हुए हम किताब को पहले ले आएंगे और जैद को बाद में ले जाएंगे। तो ये उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम साथ साथ पुराने मुरक्कबात भी रिवाइज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो और सबके हमें साथ साथ याद आ जाए कि हमने किस तरह क्या बनाया था। जब हमने इसमें मुरक्कब इशारी पढ़ा था तो वहां पे ऑर्डर रिवर्स नहीं हुआ था। उर्दू में भी इसमें इशारा पहले आता है, अरबी में भी इसमें इशारा पहले आता है। उर्दू में भी मुशारुन इलैह बाद में आता है, यानी जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा हो। अरबी में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है। लेकिन मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी दोनों के अंदर उर्दू के बरअक्स ऑर्डर उल्टा हो जाता है, स्वैप कर जाते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना है। अब हम कवाइद की तरफ आ जाते हैं। हमेशा की तरह हम, क्योंकि दोनों लफ्ज जो है वो इस्म है, तो हमें चार चीजों का पता होना जरूरी है: अदद, जिन्स, वसत और एराब। अब इसके अदद के हवाले से क्या है? अगर आपको याद हो तो पिछले दो लेक्चर्स में मैं अदद को जरा एंड में लेके आती थी। इस दफा मैंने आपको अदद को और जिन्स को मैं पहले लेके आऊंगी, क्योंकि ये आसान चीजें हैं और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिसमें जरा सा ट्रबल थोड़ी सी होगी सीखने में, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो मैंने एंड में रखी हैं। तो अदद के हवाले से क्या होगा? अगेन वाहिद मुसन्ना जमा कुछ भी हो सकता है। हम ये भी तो कह सकते हैं जैद की किताबें, हम ये भी कह सकते हैं कि लड़कों का स्कूल। तो अब जो स्कूल है वो एक हो गया लेकिन लड़के ज्यादा हो गए। हम ये भी कह सकते हैं लड़कों की किताबें, तो दोनों जमा हो गए। तो इधर जो है कोई आपस में मुताबिकत नहीं है। देखा, पहली दफा आपने देखा ऐसी चीज जिसमें आपस में कोई मुताबिकत नहीं है। यूजुअली हमारे क्या होते थे, अदद और जिन्स आपस में मुताबिकत इख्तियार करते थे, होता था ना ऐसे। अब यहां ऐसा केस नहीं है। मुरक्कब इजाफी में दोनों चीजें अपने हिसाब से जो ओरिजिनल है उसका वही रखेंगी। अगर ओरिजिनल में मुदाफ वाहिद है तो अरबी में भी वो वाहिद रहेगा। अगर ओरिजिनल में मुदाफ इले जमा है तो अरबी में जमा रहेगा, मुसन्ना है तो मुसन्ना रहेगा। एक दूसरे के ऊपर इसका ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। ठीक हो गया। फिर जिन्स के हवाले से बात करें तो जिन्स में भी मुजक्कर मुन्नस दोनों हो सकते हैं और इसमें भी कोई आपस में मुताबिकत नहीं पाई जाती। हम कह सकते हैं लड़के की किताब, हम ये भी कह सकते हैं लड़की की किताब। अब ऐसे केस में मुदाफ इले लड़का और लड़की दोनों मुजक्कर मुन्नस दोनों है, कुछ भी हो सकता है। किताब जो है वो मुजक्कर है। अब मैं कहूँ लड़की की किताब, तो लड़की मुन्नस है लेकिन किताब मुजक्कर है, तो डजेंट मैटर, हमने जबरदस्ती नहीं आपस में एक दूसरे को जोड़ना। तो मुरक्कब इजाफी के अंदर अदद और जिन्स कुछ भी हो सकता है, बेस्ड ऑन जो उसकी ओरिजिनल वहां पे असल लैंग्वेज में लिखा हुआ है वही होगा। इसकी जिन्स जबरदस्ती मुताबिकत दे के तब्दील नहीं की जाएगी, ना ही अदद को आपने जबरदस्ती तब्दील करना है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए, यानी इनके ऊपर हमें फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इनका कोई कानून हमने इसमें नहीं पढ़ना कि जी रिलेट करना ही करना है। अब बात आ जाती है वुसअत की। तो वुसअत के एतबार से जरा पॉइंट आपने देखना है। वुसअत के एतबार से मुदाफ इले की मुनासबत से मुदाफ लिखना है। असल में मुझे पता है इस टाइम आप लोगों के जहन किस तरह काम कर रहे होंगे। आप लोग अभी भी मुदाफ और मुदाफ इले के चक्कर में दिमाग में बोझ डाल के बैठे होंगे। जब मैं बोलती हूँ मुदाफ इले की मुनासबत से मुदाफ को कन्वर्ट करना है, आई एम श्योर कि आप लोग इस टाइम थोड़े से उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे होंगे कि ये क्या चक्कर है। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल लड़के की किताब
اس میں سے لڑکا مضاف الیہ تھا. ٹھیک ہے، جو پہلا ورڈ اردو کے حوالے سے یاد رکھیں. اردو کے حوالے سے جو پہلا ورڈ تھا، عربی میں وہ بعد میں آئے گا. اس کا معرفہ اور نکرہ اپنے حساب سے لکھا جائے گا، لیکن اس کی مطابقت دیتے ہوئے سیکنڈ ورڈ کی عربی بنائی جائے گی، وسعت لکھی جائے گی. اگر وسعت نکرہ ہے تو ویل اینڈ گڈ، مسئلہ نہیں ہے. اگر وسعت معرفہ ہے، فار ایگزامپل جیسے ابھی میں نے کہا زید کی کتاب، اب زید معرفہ ہے، زید ایک نام ہے، وہ ایک معرفہ ہے. اب اس کے حساب سے جب کتاب کو نسبت دی جائے گی تو وہ ہونی تو معرفہ چاہیے، ہے نا. اب جب کتاب کو ہم معرفہ میں دیکھتے ہیں تو معرفہ میں کیا بنتا ہے؟ الکتاب. اگر ہم نکرہ میں دیکھیں تو ہم کہیں گے کتاب، لیکن اگر ہم اسے معرفہ کرنا چاہیں گے تو ہم الکتاب کہیں گے. اور یہ رول کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ نسبت، جس چیز کی نسبت دی جا رہی ہے، ایکچولی اس کی جو بھی وسعت ہے وہ آپ نے وہی کاپی کرنی ہے آگے لفظ میں. تو کتاب کو اصولی طور پہ الکتاب ہونا چاہیے، لیکن یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ داخل ہو جاتا ہے کہ چاہے نکرہ ہے چاہے معرفہ ہے، ال نے داخل نہیں ہونا. ال کا داخلہ یہاں پہ منع ہے. مرکب اضافی میں ال کا داخلہ منع ہے، مضاف الیہ کے اینڈ پہ نہیں. یہ ایگزامپلس کریں گے تو ہمیں کلیئر ہو جائے گا. مضاف الیہ میں اگر کوئی چیز معرفہ ہے اور اس کے ساتھ ال لگ رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو لگا ہی رکھیں. لیکن اس کی وجہ سے جو دوسرا لفظ کنورٹ ہو رہا ہے، جو دوسرا لفظ کنورٹ ہو رہا ہے، اس کے اوپر ال داخل نہیں ہوگا. کنفیوژن ہٹانے کے لیے اگین مضاف الیہ مضاف کنفیوز کرتے ہیں آپ لوگوں کو، میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ عربی کے اندر مضاف کی جو جگہ ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ مرکب میں پہلا لفظ. پہلا لفظ مرکب اضافی کا پہلا لفظ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ مرکب اضافی کا پہلا لفظ چاہے معرفہ ہے چاہے نکرہ ہے، ال داخل اس میں نہیں ہو سکتا، دوسرے لفظ پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بس اس طرح یاد رکھیں کہ پہلا جو لفظ ہے نا اس پہ ال نہیں آ سکتا. پھر کیسے پتا چلے گا کہ مطابقت پھر کیسے ہوئی؟ معرفہ ہم نے کہا تھا ابھی دوسرا لفظ اگر معرفہ ہے تو اس کو بھی معرفہ ہونا چاہیے. پھر اگر ال نہیں لگا رہے تو کیسے پتا چلے گا؟ ابھی ہم دیکھیں گے کیسے پتا چلے گا. بڑا آسان سا حل ہے، پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اگلی سے اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے اعراب. اعراب اعراب جو ہے وہ اگین ایک ٹرکی یہاں پہ پارٹ ہوگا. مضاف الیہ کا یعنی عربی میں لکھے جانے والے مرکب کے سیکنڈ جو ورڈ ہوگا اس کے جو اعراب ہیں وہ جر ہوگا، اس کی حالت جر میں ہوگی. ابھی دیکھیں، ابھی تک ہم کیا پڑھتے تھے؟ رفع رفع رفع، یا پچھلی دفعہ مرکب توصیفی میں ہم نے دیکھا رفع نصب جر تینوں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ آیا ہے ایسا کیس جس میں ہم نے دیکھا کہ مضاف الیہ کا یعنی ایک ورڈ کا عربی میں یہاں پہ جر کی حالت میں ہونا ضروری ہے، کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، اب پھر آ جائے پہلے لفظ کی طرف یعنی مضاف کی طرف، اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ ایک عجیب سی بات لکھ دی گئی کہ یہ ہلکا ہوگا. ہلکا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہلکا ہونا کیا ہوتا ہے؟ اعراب کو ہلکا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اعراب کے ہلکے کرنے کے دو اصول ہیں. ایک اصول یہ ہے کہ اگر تو اس پہ تنوین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھاری ہے، تو اس کی تنوین ختم کر دیں. ٹھیک ہے، زیدن ہے تو زید کر دیں، زیدو کر دیں. کتابن ہے تو کتابو کر دیں. کتابن ہے تو کتابہ کر دیں. اور یہ ہم اصول دیکھ چکے ہیں کہ اگر دو زبر گرا دیے جائیں، دو زبر میں سے ایک زبر گرا دیا جائے تو الف جو ایکسٹرا آتا تھا نصب میں، حالت نصب میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. وہ الف وہاں کیوں تھا؟ دو زبر کی وجہ سے تھا. ہم جب کسی چیز کو، کسی اسم کو حالت نصب میں لے کے جاتے ہیں دو زبر کے ساتھ، تو اس کے آگے ہم کہتے ہیں نا ایک الف ڈال دیں. وہ دو زبر کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ ایک زبر نکال دیا جائے اس میں تو وہ پھر اس الف کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اسی لیے کتابہ میں الف نہیں آئے گا، صرف زبر آئے گا. کتابن اگر ہم دیکھیں کتاب ہی ہو جائے گا، زیر آ جائے گا.
ठीक है। हल्का करने का पहला असूल यह है कि अगर तनवीन वहां मौजूद है तो उसको खत्म कर दिया जाए। तनवीन और कहाँ खत्म होती थी? एक चीज हम पहले भी अरबी में पढ़ चुके हैं जहां तनवीन खत्म होती थी। कोई बताएगा मुझे? कौन सी ऐसी जगह थी जहां दाखला मना था, दो पेश दो जबर वगैरह का? किसी को अगर याद हो? कौन बताएगा? जी बताएं। जब इसम को मार्फा बनाया जाता था तो उस वक्त हाँ यानी अल के जी, दाखिले के साथ तनवीन का बिल्कुल। खात्मा होता वेरी गुड, वेरी गुड। जब भी कभी हम अल का दाखला करते थे मार्फा बनाने के लिए, तो अल जो है उसे गवारा नहीं है कि मेरे साथ तनवीन आए। ठीक है। अल को बुरी लगती है तनवीन, तो अल होता था तो वो कहता था तनवीन को हटा दो। दूसरा अब केस हम ये पढ़ रहे हैं कि जब एराब को अगर हमने हल्का करना है, यानी कि मुरक्कब इजाफी का जब हम पहला लफ्ज लिख रहे हैं, तो उसके अंदर अगर तनवीन है, गिरा दें। पहले लफ्ज में तनवीन नहीं आ सकती। ठीक है। दूसरे के मुतालिक हमने पढ़ लिया, वो तो जर है, उसको हमें कुछ नहीं करना, उसकी हमें कोई अरबी हालत नहीं चेंज करनी। पहले वर्ड के लिए जरूरी है कि हम उसकी तनवीन को गिरा दें। असूल नंबर 2, अगर तनवीन नहीं है बल्कि कुछ और है, वो दूसरा कुछ और क्या हो सकता है? मुसन्ना और जमा सालिम मुजक्कर के केस में अगर आप देखें, तो आपकी जो अरबी हालात होती हालतें होती थी, उनके एंड में दो जबर दो जेर दो पेश यानी तनवीन नहीं आ रही होती थी, बल्कि क्या आ रहा होता था? नून आता था। ऊना ईना ईना, आनी ऐनी ऐनी, सारों में नून आ रहा है ना। तो चाहे वो ऊना ईना ईना का नून है, चाहे वो आनी ऐनी ऐनी का नून है, आपने जब इसको और आपको हल्का करना है तो उसमें से भारी चीज आखिरी नून है, उस नून को गिरा दें। इन शॉर्ट, एराब को हल्का करने का मतलब ये है कि एराबी हालत बनाएं ओरिजिनल जो भी है, और उसके एंड में जो भी चीज है उसे ड्रॉप करें। तो तनवीन के एंड में दो नजर आ रहे हैं आपको जबर जेर पेश, तो एक को बाय बाय कर दें। और नून वाले अल्फाज में आपको क्या नजर आ रहा है? नून नजर आ रहा है ना, नून को निकाल दें। तो ये हल्के हो जाते हैं, वजन इनका हल्का हो जाता है। ठीक है। तो ये असूल है। जैसे किताबानी, इसके क्या बन जाएगा? किताबा। किताबईनी, किताबई। काफिरूना, काफिरू। मुस्लिमीना, मुस्लिमी। नून बस गिरा दिया, हमें नून से कोई गर्ज नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखें कि मुरक्कब इजाफी की हम अगर अब देखना शुरू करें असूलों के मुताबिक, एक बनाना शुरू करते हैं। तो लड़के की किताब में सबसे पहले लड़का हो गया, उर्दू में किताब हो गया, लेकिन स्वैप करना है, स्वैप कर देना है। ठीक है। उर्दू के ऑर्डर को चेंज कर दिया, किताब पहले आ गया, लड़का बाद में आ गया। अब मैं आपसे ये कहूंगी कि लड़के को पहले लिख लें, क्योंकि लड़का आसान है। सेकंड वर्ड को कैप्चर करना आसान है, उसके ऊपर हमें कोई ऐसे असूल नहीं दाखिल करने सिवाय इसके कि उसकी हालत जर है। तो लड़के को क्या कहते हैं? वलद। ठीक है। लड़के को कहते हैं वलद। तो अब अगर मैं कहूं नकरा में लिख दें वलद को, तो आप वलद ही लिखेंगे, लेकिन क्या होगी इसकी एराबी हालत? जर। तो आप कहेंगे वलदिन। अगर मैं कहूं मार्फा बना के लिखें लड़के को, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अल वलदी। ये बन गया। सेकंड पार्ट में कोई मसला नहीं होगा, मसला आ जाएगा किताब में, क्योंकि इसके ऊपर तो इतने सारे असूल लगते हैं। इसके ऊपर तो इतने सारे असूल लगते हैं। इसका असूल, वुसत का असूल क्या कहता है? कि जो आपकी मुदाफिले की यानी दूसरे वर्ड की जो भी वुसत है उसी को अडॉप्ट करें, लेकिन अल भी नहीं जाना, हमें अल भी नहीं देना। और फिर अराब कहते हैं कि चलो अराब भी ले लो बेशक उससे, लेकिन अराब ये कहते हैं कि हमें जो है वो हल्का करना है। तो अब तकरार ये है कि अल भी नहीं डालना, दो पेश दो जबर भी नहीं आने यानी तनवीन भी नहीं आनी, अगर नून एंड में नून भी हटा दो, तो ये बड़ा तंग करता है। जो पहला लफ्ज है मुरकब इजाफी का, ये हमेशा तंग करता है। मगर जब हम एग्जाम्पल्स कुरान से देखेंगे फिर हमें बड़ा क्लियर हो जाएगा। ओ अच्छा, हमारे तो मुंह पे चढ़ी हुई है एग्जाम्पल, लेकिन हमें पता ही नहीं था इससे पहले कि ये एक्चुअली हम मुदाफ बोल, हम मुरकब इजाफी बोल रहे हैं।
तो अब आप देखें कि नकरा में क्या बनेगा। नकरा में किताबुन होना चाहिए, लेकिन असूल कहता है कि अराब हल्के करो। जब हल्के किए तो मेरे पास क्या बना, किताबु वलदिन। किताबु वलदिन। मारफा, अगर मारफा के केस में आएगा तो मैंने अल दाखिल नहीं करना, किताबू को किताबू ही रहने देना है। असल में अल किताबू बनना था, लेकिन इसके असूल की वजह से वो अल खत्म हो गया, तो ये अगेन किताबू रह गया। तो अब आप देखें, कहने को लग रहा था बड़ा मुश्किल है, मगर नकरा और मारफा में भी दोनों जगह पर लफ्ज सेम ही रहेगा। नोटिस करें कि जो पहला लफ्ज है उसकी हमें फिर इसका मतलब ये है कि उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी कि ये नकरा है या मारफा। ठीक है, हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी। असूल पढ़ते हुए हमने टेंशन ली थी, लेकिन अब हमें जब सामने लिखा हमने अपने एग्जाम्पल को, तो हमें बात समझ आई कि अच्छा, इसकी तो टेंशन लेनी ही नहीं है। बस सीधा सा असूल बना लें, अल भी नहीं डालना। हमें नहीं सोचना मारफा है नकरा है, बस अल नहीं डालना हमने। और अगर तनवीन है तो उसको एक गिरा दें, अगर नून वाला वर्ड है तो नून गिरा दें, दैट्स इट। मत सोचेंगे नकरा है कि मारफा। बस हमें ये पता है अल नहीं डाला, और हमें ये पता है कि तनवीन या आखिरी जो भी चीज है वो गिरा दी, तो ये किताब हो तो किताब हो ही रहेगा। तो फर्स्ट वर्ड हमेशा सिमिलर ही रहेगा। हाँ, लेकिन मुदाफ इलेह में क्योंकि हम चाह रहे थे कि लड़के को मारफा की तरह लिखें, तो अब हम अल कर देंगे, अल वलदी। ठीक है, तो किताबुल वलदी। ज्यादातर मैं आपको बताऊं कि ये जो नीचे मैंने मारफा वाली लिखी है ना, ये ज्यादा फॉलो होती है। अगला वर्ड हमेशा अल करके आता है और इसी तरह हमारे पास चीजें जुड़ जाती हैं, ज्यादातर ये होता है। ज्यादातर आप ऐसी मिसालें देखेंगे। अदायगी में भी आसान लगता है क्योंकि दो चीजें जुड़ जाती हैं। अब हम कहेंगे ना किताबु वलदिन, उसकी बजाय अगर हम कहेंगे किताबुल वलदी, तो हमें समझ में ज्यादा अच्छी आती है। अब हम जरा मुसन्ना पे आते हैं। मैं कहती हूँ लड़का तो वो लड़का ही है, एक अकेला वाहिद है, मगर किताबें मैं दो कर देती हूँ। अब जब मैं किताबें दो करूंगी तो अगेन क्या फर्क पड़ेगा, किताब में तो पहले आना है। तो किताब का जो अ, अरबी बनेगी दो किताबों की, वो क्या होगी, किताबानी। लेकिन मुझे क्या लिखना है, किताबा। ठीक है, किताबा वलदिन। और मारफा के केस में किताबा अल वलदी, यानी किताब अल वलदी। अगेन देखें पढ़ने में स्मूथ क्या है, ये मारफा वाला। तो आप देखेंगे कि ज्यादातर दफा हम लोगों के साथ हम लोग ये चीज इसी तरह लिखते हैं कि मारफा की ही फॉर्म में ज्यादा आपको ये मिलेगी। ठीक है, उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि जब हम कह रहे हैं ना लड़के की किताब, तो एक्चुअली हम एक चीज को खास कर रहे हैं। हम एक चीज को खास कर रहे हैं, और यूजुअली जब वो चीज खास होती है तो उसकी वुसअत हमेशा अमूमन अमूमन मारफा होती है। ठीक है, तो किताबल वलदी। कहाँ पे अल नहीं आएगा, मारफा होने के बावजूद अल नहीं आएगा सेकंड वाले लफ्ज में, वहां पे जहां प्रॉपर नाम होगा। जैसे अगर हम कहते हैं जैद की किताब, तो अब जैद के साथ हम अल नहीं लगा सकते, नाम है ऑटोमेटिकली वो मारफा ही है। तो अब हम क्या कहेंगे, किताबु जईदिन जईदिन। उसमें हम जबरदस्ती अल नहीं ठोकेंगे कि अच्छा घुसाओ अल को, ऐसे नहीं करना। ठीक है, अच्छा। अब हम जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, ये वर्ड हम कितना बोलते हैं अरबी के अंदर। अल्लाह का घर, घर को पहले ले आए, अल नहीं डालना, तनवीन भी नहीं डालनी। तो बैतुन की बजाय क्या होगा, बैतु। और अल्लाह को जर में लिखना है अल्लाह ही। बैतुल्लाह, हम कितना बोलते हैं बैतुल्लाह जा रहे हैं, बैतुल्लाह की जियारत करने जा रहे हैं, हम उम्रा करने बैतुल्लाह जा रहे हैं। खाना काबा को कहते हैं ना। आप समझ आई ये बैतू में। अब हालांकि असूली तौर पे जब हमने बिल्कुल शुरू में अरबी पढ़नी शुरू की थी, तो हमने ये देखा था कि अच्छा नकरा मारफा देखे थे, तो हमें पता चला उस वक्त अगर हम देखते इस लफ्ज को स्टैंड अलोन के बैत लिखा हुआ है, तो एक सवाल जहन में आना चाहिए था कि यहाँ बैत के साथ दो पेश क्यों नहीं है। हालांकि रफा की हालत में तो दो पेश होने चाहिए थे, और अगर दो पेश नहीं है तो एक अल लगा होना चाहिए था। जहन में तो हमारे ये चीज आती है ना। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक्चुअली ये लफ्ज अकेला बैत नहीं है, यहाँ पे बैतुल्लाह ये एक मुरक्कब है। इस वजह से ना अल है और ना ही तनवीन है। ठीक हो गया, बैतुल्लाह। अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह। लो, नाम का मतलब समझ में आ गया।
क्यों हम अब्दुल्ला लिखते हैं, क्यों हम अल अब्दुल्लाह नहीं लिखते, या अब्दुल अल्लाह नहीं लिखते, अब्दुल्लाह। अल्लाह की निशानियां, आयातुल्लाह। अल्लाह का रसूल, रसूलुल्लाह। कितनी दफा हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह। हम कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के दो रसूल अल्लाह के तो हैं काफी सारे, अल्लाह के तो अल्लाह ने तो काफी रसूल भेजे ना। हम जब कहते हैं रसूलुल्लाह तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो अल्लाह के तो काफी रसूल आए हैं इस दुनिया में ना। तो दो भी हो सकते हैं, अगर हम कहें अल्लाह के दो रसूल तो हम कहेंगे रसूल अल्लाह, तब भी कहेंगे रसूल अल्लाह, लेकिन लिखने में अलिफ एक आ रहा होगा। तो यहाँ लिखे हुए इसको देख के पता चल जाएगा, यहाँ एक रसूल की बजाय दो रसूलों की बात पता चल रही है जी। ईमान ने मैसेज किया है सिरातुल मुस्तकीम, बिल्कुल जबरदस्त, सीधा रास्ता। देखिए अब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। सूरह फातिहा की पहली आयत में आए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। ठीक है ना, हमने ये तो नहीं कहा कि जो पहला लफ्ज है वो जर में नहीं जा सकता, वो नसब में भी हो सकता है, जर में भी हो सकता है, वो रफा में भी हो सकता है। जब जुमले जोड़ेंगे तो पता चलेगा अच्छा वो रब्बिल आलमीन क्यों है, रब्बुल आलमीन यहाँ क्यों नहीं है, रब्बिल आलमीन क्यों है यहाँ पे, जर में क्यों है, लेकिन हो तो सकता है। बट फर्क क्या हुआ कि रब के साथ ना तो यहाँ अल लगा, ना ही रब के बाद नीचे जो है वो दो जेर आई, क्योंकि आगे वो जुड़ रहा था, उसके साथ निस्बत खा रहा था, रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब। ठीक हो गया। अच्छा, दो लड़कों का घर, बैतुल वलदैनी। अब आप ये देखें मैंने क्यों यहाँ पे दो लड़के पहले डाले हैं, क्योंकि जब ये दो लड़के एज अ सेकंड वर्ड आते हैं वहां पे नून नहीं ड्रॉप करना। नून को कहाँ गिराना है, सिर्फ पहली, अगर आप वो लफ्ज पहले आ रहा है। ठीक है ना, जिस तरह यहाँ दो रसूल थे तो रसूलानी की बजाय नून ड्रॉप हो गया, लेकिन यहाँ पे वलदैनी, दो लड़के बाद में आ रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे आ रहे हैं, तो फिर इस जगह से नून ड्रॉप नहीं करना। ये वजह, अब आप ये देखें, अब दो लड़कों की अरबी क्या होती है, वलदानी। मारफा बनाना था तो अल लगा दिया, अल वलदानी। लेकिन यहाँ पे अल वलदैनी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अल वलदानी हालत रफा है, हमें चाहिए हालत जर। जो सेकंड वर्ड होता है वो हालत जर में होना लाजिम है, इस वजह से अल वलदैनी। इसी वजह से रब्बुल आलमीना है, आलमूना नहीं है, क्योंकि आलमून ऊना रफा होती है, ईना जर होती है। सेकंड वर्ड का मुरक्कब इजाफी में जर होना बहुत जरूरी है। पहला वर्ड रफा भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। अल नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी, अगर नून है तो नून गिरेगा। दूसरे वर्ड के लिए जरूरी है कि वो हालत जर में हो, बस ये टोटल असूल है। शुरू में जब हमने लिखे हम बड़ा घबरा रहे थे, ओ हो क्या होगा, समझ में ही नहीं आ रहा। आप बस छोड़े मुदाफ को, छोड़े मुदाफ इले को समझा तो दिया मैंने, लेकिन अब जहन में आप सिंपल करने के लिए रखें, दो लफ्ज हैं, दो लफ्जों में से जो पहला लफ्ज है उसके साथ अल नहीं आएगा, उसके साथ एंड में एराब उसका हल्का हो जाएगा। दूसरा लफ्ज हर हालत में हालत जर होना जरूरी है, दैट्स इट, खत्म। कोई मुताबकत करने की जरूरत नहीं है इधर उधर, कि अच्छा एक है तो वाहिद है तो उसको जमा के साथ जोड़ना है, जमा गैर अकिल की जमा है तो उसको मुअन्नस कर दो, नहीं, कुछ भी नहीं। लड़के के दो घर, अब मैंने चेंज किया, पहले मैंने दो लड़कों का घर किया, मैंने लड़के के दो घर किए, ताकि अब घर जो है वो पहले आ गए, और दो घर पहले आ गए और लड़का बाद में आ गया। अब क्या होगा, अब बैत से बैतानी, और क्या होगा, नून ड्रॉप हो गया, बैता, और फिर अल वलदी, बैतल वलदी। इसी तरह दो लड़कों के दो घर, बैतल वलदैनी। ये बैठ के तसल्ली से पेपर पे खुद से कीजिएगा, एक साइड का कॉलम, जब मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, एक साइड का कॉलम छुपा दें, या फिर खुद देख के उर्दू वाले लिख लें कॉलम बना के, उसके बाद कॉपी बंद करके आप स्लाइड्स बंद करके खुद लिखें, अरबी बनाने की कोशिश करें, फिर आपको क्लैरिफाई ज्यादा हो जाएगा, फिर आप देखेंगे, अच्छा चेक करें कि ठीक लिखा है या नहीं। मुसलमानों का घर,
बैतुल मुस्लिमीना, मुस्लिमूना होता है हालत रफा, मुस्लिमीना हालत जर। मस्जिद के दरवाजे, अबवाबुल मस्जिद, ये भी एक ऐसा लफ्ज नहीं लगता जो सुना हुआ ना हो, समझ में आने वाला लफ्ज लगता है, सुना सुना लफ्ज लगता है। ठीक है। अब आ जाएं प्रैक्टिस के ऊपर, कुरान से प्रैक्टिस। पहली एग्जांपल तो मैंने खुद ही बता दी थी, अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन। इसमें से रब्बिल आलमीन जो है वो तमाम जहानों का रब, ये है मुरक्कब इजाफी। अगली आयत में से कौन बताएगा? सबसे पहले, भाभी। जी 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 तंजीला आप बताएं। मालिक यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन। जी, कौन है इसमें मैंने से? बताया मालिकी। मालिकी हाँ, नहीं नहीं, यौमिद्दीन। इसमें से है क्या, इसमें से मुरक्कब इजाफी क्या है? जो मुरकब इजाफी है ये यौमिद्दीन। हाँ, यौमिद्दीन। हम कहते हैं ना वो मालिक है किसका? यौमिद्दीन का, यानी कि जजा यौमिद्दीन के का। दिन का, जजा का दिन। ठीक हो जी। गया। अगला भी आप ही बताएं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। जो बिरब्बिन नास। रब्बिन नास, बिल्कुल। रब्बिन नास, इंसानों का रब। नास जो है वो प्लूरल होता है इंसानों की, तो रब्बिन नास इंसानों का रब। मलिकिन नास, जी, मलिकिन नास। पूरा इसमें यही है, यानी इंसानों का इंसानों का मालिक। बादशाह या मालिक या बादशाह। इलाहिन जी। नास, इलाहिन नास, इंसानों का क्या हाँ कहेंगे हम इंसानों इसे? का माबूद, जिसकी इबादत करते हैं। इलाह जो है वो इबादत, माबूद होता है ना। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, इसमें से क्या है? जो खन्नास है। नहीं, खन्नास तो एक बस अकेला लफ्ज है। बस नहीं, आप शर्रिल सोचें। वसवास। शर्रिल शर्रिल वसवास। वसवासिल, जी, शर्रिल शर्रिल वसवास। वसवास, शर्रिल वसवास। अब हम्म, आप देखें कैसे हम्म, पेयर करेंगे। आपने मुरक्कब, हम्म, पहली बात दो लफ्जों का होता है, एक का अकेला नहीं हो सकता। हम्म, उन दो लफ्जों में से आपके पास एक बहुत बड़ी हिंट आ गई है कि उन दो लफ्जों में से पहला लफ्ज जो है ना, वो किसी सूरत उसमें अल नहीं होना चाहिए, और उसकी जो ज़े ज़बर है वो भी एक होनी चाहिए। तो आपको पता चल जी। गया वो, ये तो शर्रिल वसवास। अब अगर आप जोड़ना शुरू करें अल वसवासिल खन्नास, तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अल हम्म। वसवास में अल आ गया, अल्फलाज। तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो मिन शर्रिल वसवास, यानी कि वसवसों का शर। तो हम अल्लाह से क्या पनाह मांग रहे हैं? कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। हम उन वसवसों के शर से पनाह मांग रहे हैं अल्लाह की। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, इसमें क्या है? सुदूरिन नास। सुदूरिन नास, इसमें है इंसानों के सीने। सुदूर जो है वो सीनों की, सीने की प्लूरल होती है, सदर जो है वो एक होता है। वेरी गुड। अब अगली स्लाइड कोई और करे, मुअज़्ज़मा आप कर लें। रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन। इसमें दो हैं, रब्बुल मशरिकैनी व रब्बुल मगरिबैन, रब्बुल हाँ, मगरिबैन और रब्बुल मशरिकैन। इसका जरा मुझे मतलब बताएं, बिल्कुल सही। रब्बुल मशरिकैन का क्या मतलब होगा? दो मशरकों का रब और वेरी दो गुड। मगरिबों हाँ, का। क्योंकि अब अईनी आ रहा है, तो इसका मतलब ये आनी से अईनी था, तो दो हो गए। तो एक मशरिक की बात नहीं हो रही, दो मशरिकों की बात होती रही है। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, दो मशरिकों का रब, दो मगरिबों का रब। अगला बताए, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़ियाहा। इसमें भी दो हैं, रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि। शाबाश, रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, नाक़तुल्लाहि। नाक़तुल्लाहि क्या होता है? नाक़ा पता है क्या होती है? हम्म, ऊंटनी। मैं ऊँटनी। ऊंटनी है। ये आपको नहीं पता होगा। ये सूरत अगर नहीं आपने पता। तफसीर पढ़ी हो ना, तो वहां पता चलता है। अल्लाह की ऊंटनी, मुझे हजरत नहीं सालेह पता। अलैहिस्सलाम की जो ऊंटनी थी, वो बेसिकली उसको अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह की ऊंटनी थी, नाक़तुल्लाह। अब यहाँ पे जो अल्लाह का रसूल है ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, बल्कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। वो भी अल्लाह के रसूल थे। तो ये जो बेसिकली आप सूरत है, इसको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है। ये सूरह शम्स है, ठीक है। तो वहां पे अल्लाह का रसूल और फिर अल्लाह की ऊंटनी। लेकिन आप मजे की बात देखें कि अब आपको एकदम से नजर आने लग गए हैं, दूसरा लफ्ज हमेशा जर में होगा, और जो पहला लफ्ज है उसमें अल नहीं है, और एक एक जबर जेर है। ठीक हो गया? एकदम से आप फौरन पूरी आयत में देख के, आज से 10 क्लासेस पीछे आप ये चीज नहीं देख सकते थे। अब आप देखें आप कितना आगे आ गए हैं। आप ये खुशी मनाएं कि आप कितना आगे आ गए हैं,
کہ اب آپ نے پوری آیت کے اندر سے ایک دم سے دیکھتے ہی نکال لیا کہ اچھا یہ مرکب ہے اور اس کا یہ مطلب ہے۔ اب اگلا بتائیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر، ہاں، قدر کی رات، لیلہ جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں، تو قدر کی رات ہے، ٹھیک ہے کیا؟ اب ہم کسی اور کو بھی چانس دے دیتے ہیں۔ اچھا، ایمان آپ بتانا چاہیں گی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کرنا چاہیں گی؟ جی، میں اس میں سے دیکھنا چاہوں گی۔ وما اس ادراکا، وما ادراکا ما لیلۃ القدر، سورہ قدر کی آیات ہیں۔ وما ادراکا لیلۃ ما القدر، لیلۃ القدر، بالکل قدر کی رات، یہاں بھی یہ قدر کی رات ہے، پہلی آیت میں بھی یہ قدر کی رات تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ القدر تو دونوں میں سیم رہا، لیکن لیلہ کے ساتھ پہلی والی آیت میں حالت وہ جر تھی اور دوسری آیت میں وہ حالت رفع میں۔ تو یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بدل سکتی ہے اپنی حالت، لیکن القدر نہیں حالت بدلے گا، کیوں؟ کیونکہ وہ سیکنڈ ورڈ ہے، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو لفظ ہے اس نے حالت بدل سکتا ہے، اور وہ کیوں حالت بدل رہا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے جملے میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ حالت تبدیل کر رہا ہے۔ تو جب ہم ان مرکبات کو اٹھا کے جملوں میں ڈالیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ اچھا یہ حالت کیوں اب اس کی چینج ہو رہی ہے، لیکن ان اینی کیس سیکنڈ والے کی حالت نہیں چینج ہونی، ٹھیک ہے؟ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اس وقود میں کیا ہے؟ النار، ہاں، وقود النار، وقود آگ النار، کا ایندھن، ٹھیک ہے؟ آگ کا جی، ایندھن، کدابی، کدابی آل فرعون، کدا بھی آل فرعون۔ ہاں جی، اس میں کیا ہے؟ جی ایمان، آپ بتا رہی تھی، آپ غور کریں، اب یہاں تھوڑی سی شاید آپ کنفیوز ہوں، لیکن ذرا سا غور کریں اصولوں کے اوپر۔ کدابی آل فرعون، اس میں سے کیا ہوگا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ دو دیکھیں، مرکب اس تین حروف لفظوں کا جو ہے، اس میں دو مرکب بن سکتے ہیں جو اگر دیکھنے میں لگے کہ اچھا اگر دو لفظ جوائن ہو جائیں کہ کدابی آلی یا پھر آلی فرعون، تو کیا ہو آپ کے خیال میں، کیا ہوگا ان میں سے؟ ان میں کدا بھی آل فرعون میں رولز کے مطابق کدا بھی جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، نہیں، آل کتابی فرعون نہیں، 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 مضاف۔ نہیں، یہاں پہ ہم ذرا سی مار کھا جاتے ہیں، اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ یہ آل فرعون ایکچولی مرکب اضافی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کدابی میں بھی تو پھر ایک وہ ہے، ہم نے ابھی آیت میں سے میں نے صرف ایک حصہ اٹھایا ہے، یہ ایکچولی پیچھے کی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ آگے جب پورا پورا جملہ پڑھیں گے تو ہمیں کنیکٹ کرے گا، لیکن آل فرعون کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ کنفیوژن کا پوائنٹ یہ تھا کہ جو سیکنڈ ورڈ تھا یوزولی ہم دیکھ رہے تھے اس میں ال آئی جا رہا تھا، ابھی ہمیں یہاں کوئی ال نظر نہیں آ رہا ہے، ال فرعون تو لکھا ہوا نہیں ہے۔ اس کی ایک ریزن ہے، وہ ال بالکل، فرعون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فرعون اٹ سیلف معرفہ ہے، ایک نام ہے، اس لیے یہاں ال فرعون نہیں تھا، تو یہاں ہم کنفیوز ہو گئے۔ بیسیکلی آل فرعون ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آل فرعون مطلب فرعون کی آل، ہم کہتے ہیں نا آل یعقوب، آل عمران، ایون سورت کا نام ہے سورہ آل عمران، عمران کی اولاد، آل کیا ہوتی ہے؟ آل اولاد، ٹھیک ہے؟ اولاد، کدا بھی آل فرعون میں، کیونکہ فرعون جو ہے، اسی لیے آل عمران بھی لکھتے ہیں تو اس میں آل عمران نہیں ہم لکھتے، کیونکہ عمران ایک نام ہے، تو جب نام آ جاتا ہے وہ تو ویسے ہی معرفہ ہے، اس کو ال لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے آخری آیت کریں اس سلائیڈ کی، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یہ آسان ہے، عذاب النار، عذاب النار، عذاب اس میں النار۔ آگ کا عذاب، یہ بھی آسان ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اسی طرح اب آپ کو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہو گیا آگ کا عذاب۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہے جی پریکٹس ٹاسک، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ آپ نے دو طرح کی چیزیں دی ہیں، ایک ہے اردو سے عربی میں ترجمہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے، اس میں اللہ کی مدد، جمعے کا دن، مومن کی معراج، دین کا ستون، کافر کی جنت، وطر کی نماز، دنیا کی محبت، اسرائیل کے بیٹے، یہ یہاں پہ جب آپ بیٹھ کے اسرائیل کے بیٹے کو پراپر اصولوں کے مطابق لکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ
ایک بہت بڑی چیز سمجھ میں آئے گی جو بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر مدینہ کے مسلمان، زینب کی بیٹی، مومنوں کا رب، فاطمہ کے 2 ہاتھ۔ تو اب آپ نے یہ جو ہے 12 جو ہے سینٹنس مرکبات ان کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے سورہ فلق میں سے مرکب اضافی تلاش کرنا ہے اور اس کے معنی بھی بتانے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کا پریکٹس ٹاسک ہے۔ ابھی ہم نے اسے جملے میں کیوں نہیں استعمال کیا؟ کیونکہ آلریڈی اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مرکب اضافی کو یوز ٹو ہونے میں، تو بہتر ہے کہ پہلے اس کی پریکٹس کر لیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو جملے میں استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اب رہ گئی کہ پچھلے پریکٹس ٹاسک کی بھی میں نے ابھی تک آپ کو سالو کر کے نہیں بھیجا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے ہفتے بھی لوگ زیادہ تر ٹیسٹ ہی کر رہے تھے، اب کیونکہ مجھے سب کے ٹیسٹ مل چکے ہوئے ہیں تو اب میں انشاءاللہ پچھلے لیکچر کے بھی سلوشن پوسٹ کر دوں گی، اور اس لیکچر کا جو سلوشن ہے وہ میں آپ کو 3-4 دن کے بعد دوں گی تاکہ آپ خود پہلے کوشش کریں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تھا آج کا سبق، اور امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، مزہ بھی آیا ہوگا۔ کچھ چیزیں سم ٹائم سٹارٹ میں ایک دم سے ڈیفیکلٹ لگتی ہیں، تھوڑا ہم گھبرا جاتے ہیں، لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں بڑھتے ہیں تو ہمیں وہ ان میں مزہ آنے لگتا ہے، جیسے کہ بالکل اس کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ یہ اس ٹاپک کے اندر شروع میں ایک دم سے کنفیوژن تھی، بٹ جو ہی ہم آگے آئے اور ہم نے دیکھا کہ یہ تو ایسی مثالیں ہیں جو ہمیں اتنی زیادہ یوز ٹو ہیں، ہم ان کے ہم غور نہیں کرتے تھے، تو پھر ہمیں اب یہ چیز اتنی مشکل لگے گی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح قطرہ قطرہ علم جو ہے وہ سمیٹنے کی، حاصل کرنے کی، اس کو سینوں میں محفوظ کرنے کی جو ہے وہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کو اپنی عملی زندگی میں بھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔